मैथमेटिक्स के सवाल हवाले से आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले एपिसोड में हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी तो वो इख्तिताम को पहुंचा। तो आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस की बात करेंगे हम पहले। वी से दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज लिस्टेड इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का माने वही जो हम आम इंग्लिश में यूज कर लेते हैं, सीक्वेंशियल मैनर। तो सीक्वेंस का मतलब वही है। वी यूजुअली मीन दैट द कलेक्शन इज ऑर्डर्ड इन सच ए वे दैट इट हैज एन आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन। यानी कौन किस जगह पर बैठा हुआ है, मतलब वही है। अब सीरीज की बात है दूसरी चीज। लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN बी ए गिवन सीक्वेंस। मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस है जहां पर A1 पहली टर्म है, A2 दूसरी है, A3 तीसरी पोजीशन पर है एंड सो ऑन nth टर्म पर है। देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। यानी जो भी हमारे पास सीक्वेंस मौजूद होगी, जो भी सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल होगी, अगर हम उस सीक्वेंस में एल्जेब्रिक ऑपरेशन यूज कर लेंगे, चाहे एडिशन कर लेंगे, कभी कभी सब्ट्रैक्शन करते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, समटाइम्स डिवीजन। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब हम यूज कर लेते हैं इस सीक्वेंस के साथ, वी कॉल इट ए सीरीज और वी कॉल इट ए दिस सीरीज। दिस सीरीज इज फाइनाइट और इनफिनिट। ये सीरीज हमारी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफिनिट भी, अकॉर्डिंग आवर सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफिनिट। हाँ, तो अब रही बात जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज। यही सीक्वेंस जैसे A1, A2, A3 एंड अप टू AN इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ इट इज n plus 1th term, that means A of n plus 1. If it is equal to nth term plus a common difference d, if an plus 1 is equal to an plus d, where n is a natural number and the constant term d is called the common difference of an AP. So if such a sequence is available where each term is increased by a constant term, say d, we call it is an AP. For example, we will give certain examples like this. This was a brief introduction regarding this AP. Now we will do certain examples. Say we will write natural numbers, say 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. We see each number succeeds by adding 1 to the previous number. If we will add 1 to the 1, we will get 2. Add again 1, we will get 3. Add again 1, we will get 4 and so on. So we see that every place the difference is same. Like this, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1, 6 minus 5 is 1. Similarly, we can take say 2, 7, 12, 17 and so on. Suppose this is another sequence. We see that 7 minus 2 is 5, 12 minus 7 is 5, 17 minus 12 is 5 and so on. If this difference is same at all places, we say this is an AP or this is an arithmetic progression or arithmetic series, arithmetic sequence. But if we will add them, say 1 plus 2, 1 plus 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 and so on, we say this is arithmetic progression, arithmetic series. And similarly for other these sequences, if we use some arithmetic operation. Now we will define this arithmetic progression in a general form. Here we see two things. If we know two things, we can write an arithmetic progression. First is we should start this sequence from some term. Say we call it a first term. If we are given a first term, suppose first term is A, हम ऐसी डेफिनेशन लिखेंगे AP के लिए. If A be the first term, if A be the first term, D the common difference, D the common difference,
then the general AP is, then the general form of AP is, general form of an AP is, बस दो चीजें अगर हमारे पास होंगी, पहली टर्म यानी जो हमने ए मान ली और जो डिफरेंस होगी हमेशा हमने उसको डी मान लिया, अगर ये हमारे पास अवेलेबल है वी कैन डेवलप एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। सबसे पहली बात ए, फिर ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, एक एक डी ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। In this way, we can develop an AP which is called the general form of arithmetic progression. उसके बाद let us find the nth term or last term of an AP. So article आएगा हमारे पास to find the nth means last nth term of an AP. हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या रहेगा, लास्ट टर्म क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन की बात जब आएगी, लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d एंड सो ऑन। Let A1, A2, A3, AN be first, second, third, dash, nth terms of an AP, nth terms of an AP. Therefore, A1 means first term. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, A पहली टर्म हमारे पास यहाँ A है। इट कैन बी रिटन एज A प्लस से 1 minus 1 means 0, 1 minus 1 means 0 into D. So this A can be written as A plus 1 minus 1 into D. Because this is A plus 1 minus 1 is 0, 0 into D is 0. Similarly, if we will write second term, that is A2, A2 is equal to A plus D. So this A plus D can be written as A plus, since this is 1D, it can be written as 2 minus 1 into D, 2 minus 1 into D. Similarly, if we will write third term, this is third term, this was first, second and third. Third is A plus 2D. This can be written as A plus 3 minus 1 D and so on. We can write fourth term, fifth term, sixth term, seventh term and so on. Then AN can be written, means last term can be written as, the last term of our progression is, हर जगह हमने A लिखा हुआ है A, तो यहाँ भी A होना चाहिए। हर जगह प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अगर ये पहली टर्म है तो 1 माइनस 1, अगर ये सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1, अगर ये थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1। अब यहां ये nth टर्म है, होना चाहिए n माइनस 1। फिर एक बार, अगर पहली टर्म है तो 1 माइनस 1, दूसरी टर्म है तो 2 माइनस 1, तीसरी है तो 3 माइनस 1, 10th है तो 10 माइनस 1, nth है तो n माइनस 1। सबकी मल्टीप्लिकेशन d है तो हम d मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म और द nth टर्म ऑफ एन AP. So we can find any term if we are in know of a first term and a common difference, and we want to find suppose 100th term, we will put n is equal to 100, we can find this 100 minus 1 and so on. This term is also written by L, हम इसको L से भी कभी लिखते हैं, मीन्स लास्ट टर्म, an भी लिखते हैं L भी लिखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे n होता है, a होता है,
और डी होता है और ए एन, यानी 4 चीज़ें हमारे पास यहाँ होती है। इस फार्मूले में 4 चीज़ें, एक ए एन, एक ए, एक डी आता है और एन आता है। जाहिर सी बात है, इस इक्वेशन में जब 4 चीज़ें अगर 3 मालूम होंगी, चौथा खुद ब खुद निकल आएगा। तो इस हवाले से हम 4 एग्जाम्पल्स कर लेंगे जहां पर एक एक चीज़ मिस होगी। मसलन सबसे पहली बात हम ट्राई कर लेंगे कि कैसे हम, अगर ये सीक्वेंस दी हुई होगी, इसकी मज़ीद टर्म्स कैसे मालूम कर लेंगे हम। मसलन अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, मान लीजिए कभी कभी 0 भी हो सकता है, और डी भी हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए 5, सिंपल मोस्ट ले लेंगे। क्या हम इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देयरफॉर सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहले 0, फिर आएगा 0 + 5, फिर 2 बार 5 हो गया 10, सिमिलरली 3 बार 5 15 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी 0 5 10 15, इसी तरीके से फिर 5 5 ऐड करते जाइए 20 25 एंड सो ऑन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आए, कभी कभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। मसलन यही ले लीजिए दोबारा, अगर ए हमारे पास 0 है और डी मानते हैं -5, तो जो सीक्वेंस आएगी अरिथमेटिक सीक्वेंस, ए एस अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आएगी, सबसे पहले 0, इसमें से 5 0 -5 इस बार कर लेंगे, दैट इज -5, और -5 लेंगे तो -10 आएगा, फिर -15 आएगा, फिर -20, यानी हर बार 5 5 कम होंगे। तो हमारी सीक्वेंस जो होगी, आइदर इट कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट कैन बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास ए मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, सपोज ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर डिफरेंस हमारे पास 0 है, तो जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगी ए एस, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगी वो होगा 2, फिर 2 + 0 तो 2 ही रहेगा, 2 + 0 2, तो इसकी हर टर्म 2 आएगी। इन 3 चीज़ों से जो हमने सीख लिया वो ये सीख लिया कि हमारी जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव होगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा हमारी जो सीक्वेंस या सीरीज, और अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में होगी तो हमारी जो सीक्वेंस बनेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। लेकिन जब डिफरेंस 0 होगा तो हर एक टर्म यकसा रहेगी, जैसे 2 2 2 10 10 10 5 5 5 एटसेट्रा। एक चीज़ तो ये है कि कैसे हम बना लेंगे। एक दूसरी चीज़ होती है कि चंद टर्म्स दी हुई होती है, फिर हमें मालूम करना होता है कि क्या हम इसके और 2-3 टर्म्स लिख सकते हैं। मसलन हमारे पास ऐसे लिखा होगा 2 4 8 16। सबसे पहली बात यह देखना होता है क्या ये AP है। यहां हम देख लेते हैं कि 4 - 2 इट इज इक्वल टू 2, लेकिन 8 - 4 जब हम देख लेंगे तो ये 4 आता है, या 16 - 8 हमने देख लिया तो ये 8 आ गया। चूंकि ये आपस में बराबर नहीं है तो ये D नहीं कहलाएगा। वी से दिस इज नॉट, यहाँ अगर सिर्फ इतना हम मालूम करेंगे कि जो 4 और 2 में डिफरेंस आ गई, दैट इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 8 and 4, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। वी से दिस इज नॉट एन AP, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AS, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं आ गई, ये दूसरी सीक्वेंस है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे इस फिलहाल इस चैप्टर में नहीं है।
तो ये चीज सबसे पहले चेक करना होता है, क्या जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बिल्कुल वही सीक्वेंस है जहां हर जगह डिफरेंस सेम होगी। मसलन 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, मसलन ये दिया हुआ है। अगर यहां हम देख लेंगे 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2 एंड सो ऑन। जब हर जगह यकसान डिफरेंस होगी वी से दैट दिस इज एन एपी। एक बात ये। अब ये दूसरी बात है, क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? यस। जब हमने देख लिया कि यहां हर जगह डिफरेंस जो है दैट इज 2, तो हर बार 2 ऐड करना पड़ेगा। 12 में 2 ऐड कर लेंगे तो 14 आएगा, 14 में 2 ऐड कर लेंगे तो 16 आएगा एंड सो ऑन 18, 20, जितनी टर्म्स निकालनी होगी तो डी को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दिया हुआ हो, मसलन हमारे पास है 8, 6, 4, 2, 0, -2, फिर क्या हम इसको आगे ले सकते हैं? हाँ, यहां जो डिफरेंस आएगी हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 - a1 निकालना होता है। ये नहीं कि a1 - a2 नहीं कर सकते हैं, a2 - a1। यहां आएगा 6 - 8। अब अगर यहां करना होगा 8 - 6, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो a2 - a1 आएगा 6 - 8 यानी -2। जब डिफरेंस माइनस आ गए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी सीक्वेंस जाएगी। तो ये फर्क है या इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्योंकि डी पॉजिटिव है 4 - 2, यहाँ डिक्रीजिंग आएगी क्योंकि डिफरेंस जो है दैट इज 6 - 8 विच इज -2। तो अदर टर्म जब होंगी, अगर इसमें ये डी ऐड कर लेंगे, यहाँ -2 यानी -2 यहाँ था, अब डी ऐड करना है, ऐड करेंगे और -2 तो ये आएगा -4। इसी तरीके से और -2 करेंगे ऐड तो -6 आएगा, -8 आएगा एंड सो ऑन। तो दिस विल फॉर्म एन एपी। एक चीज तो ये भी है हमारे इसमें, और हमने ये भी देखा कि किस टर्म में हम ये देखेंगे कि वेदर दिस एन एपी और दिस इज नॉट एन एपी। अब उसके बाद चंद क्वेश्चन हम ऐसे लेंगे कि जहां पर कोई एक चीज मिसिंग होगा तो दूसरा मालूम करना पड़ेगा। जैसे अगर ए हमारे पास कुछ दिया हुआ हो, मसलन 7A दिया हुआ है, एक चीज डी होता है, इसको हम मिसिंग इस वक्त रख लेंगे। पहला ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं किताब से। अगर एन दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म्स 8 है हमारे पास। अच्छा, तो अगर ए एन दिया हुआ होगा कुछ, या ये लिखेंगे फिलहाल, तो ये रखेंगे फिलहाल हम जो मालूम करना है ए एन। 4 में से हमने 3 रख लिए, लेकिन लास्ट वाला हम चाहते हैं कि ए एन मालूम करना हो। हमेशा चाहे कौन सा इसमें गायब होगा, इन 4 में जो भी गायब होगा, हमेशा हम यह वाली फॉर्मूला खोलेंगे कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हर हाल में हमें यही फार्मूला ओपन करनी है। तो फिर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वो वैल्यू जो दिए हुए होंगे। जैसे ए एन नहीं दिया हुआ है तो ए एन को ऐसे ही हम रहने देंगे, ए की जगह रखेंगे 7, एन तो दिया हुआ है 8 तो ए एन की जगह 8 लिखेंगे, 8 - 1, और डी की जगह रखेंगे 3। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें ए एन मतलब हो गया 8, यानी ए 8 मालूम करना था, 8th टर्म मालूम करनी थी। तो ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 8 - 1 हो गया 7, 7 × 3 हो गया 21, और 21 + 7 हो गया 28। तो एक चीज़ अगर ए एन गायब होगा तो ऐसे कर लेंगे। अब अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, मसलन -18 दिया हुआ है, क्वेश्चन किताब से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। डी मान लीजिए, इस बार फर्ज कर लेते हैं डी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एन दिया हुआ है मसलन 10, और ए एन भी दिया हुआ है। ए एन दिया हुआ है हमारे पास 0,
मान लीजिए हमारी लास्ट टर्म 0 है, 0 भी हो सकती है हमारी सीक्वेंस की टर्म। तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा हर बार हम यही फार्मूला खोल लेते हैं। वी नो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो मौजूद होती है, जो हमने आर्टिकल के तौर पर की कि ए एन जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं वही वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे पास जो डी का वैल्यू नहीं है तो उसका वैल्यू हम नहीं दे पाएंगे, वो खुद ब खुद निकल आएगा। तो ए एन के लिए क्या रखेंगे, हम 0 रख लेंगे। ए एन तो 0 हमने रख लिया है। और जो ए है हमारे पास उसके लिए हमने -18 का वैल्यू रखा है यहाँ पर, प्लस एन जो है उसके लिए 10 हमने रखा है, 10 - 1। और डी के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो डी ऐसे ही रख लेंगे। तो ये -18 लेफ्ट में लाएंगे तो +18 बन जाएगा। 0 + 18 मीनस ये +18 आएगा। अब यहां आएगा 10 - 1 मीनस 9 इंटू डी। तो अब एक और स्टेप कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 9 यहां डिवाइड आएगा, यहां 18 था, डिवाइड होगा 9 इज इक्वल टू डी, यानी 9 2s are 18। इस तरीके से हमने मालूम कर लिया कि डिफरेंस जो आ गई दैट इज 2, जो डी का वैल्यू आ गया दैट इज 2। तो इस तरीके से हम ये मालूम कर सकते हैं। और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, आप 4 में से कोई भी एक खाली रख लो, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं हम। कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मसलन हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। एक क्वेश्चन यहां रखेंगे हम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर हमारे पास हैं कि जिनको 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमारी सीक्वेंस क्या होगी, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस इज, हम जानते हैं सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होगा दैट इज 100, सबसे छोटा। लेकिन जब हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, वी सी 7 1s are 7, 10 - 7 3, यहाँ 0 आएगा, 7 4s are 28, तो यहाँ 2 बचता है। यानी 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। उसका मतलब हो गया कि हम 98 है डिविजिबल 7 से, क्योंकि 2 इसमें बच गया, 2 इसमें से घटा लेंगे तो 98 है। लेकिन 98 2 डिजिट नंबर है, अगर इसमें 7 हम ऐड कर लेंगे फिर ये डिविजिबल रहेगा 7 का, तो 105। तो सबसे पहला नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। दूसरा होगा उसके बाद 112। फिर हम देखते हैं यहाँ 7 7 का डिफरेंस है, जो ही 7 का डिफरेंस आएगा तभी तो वो डिविजिबल रहेगा। फिर यहाँ आएगा 119, मैंने 7 ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। अब हम लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में क्या होगा। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999। अगर हम इनको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 1s are 7, 9 में से 7 2, यहाँ से 9 लाएंगे, 7 4s are 28, 9 में से 1 8 घटाएंगे तो 1 रहेगा, यहाँ से 9 लाएंगे, 7 2s are 14, तो यहाँ 5 बचता है। जाहिर सी बात है ये 5 एक्स्ट्रा है 999 में। अगर ये 5 999 में से हम घटाएंगे, 9 में से 5 तो 4, तो 994 रहेगा लास्ट, 994 रहेगा लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड नाउ। अब जब हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है तो वी कैन फाइंड हियर ए, यानी पहली टर्म क्या है यहाँ पर,
पहली टर्म है 105 और d जब हम मालूम कर लेंगे डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट इज 112 माइनस 105 तो डिफरेंस आएगा ऑटोमेटिकली 7 और जो हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है यानी an दैट इज 994 अब क्या रह गया हमारे पास कि n हमें मालूम नहीं है कि कितने नंबर्स हैं आखिर कितने नंबर्स हैं तो इसलिए हम जानते हैं वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए an का वैल्यू जो है दैट इज 994 और a जो है दैट इज 105 प्लस n हमें नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और d जो है दैट इज 7 अब इसको सिंपलीफाई हम कर लेते हैं 105 को यहाँ लाइए लेफ्ट में 994 माइनस 105 तो यहाँ बचता है हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ डिफरेंस कीजिए 14 माइनस 5 9 आएगा 8 माइनस 0 8 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 फिर जो यहाँ 7 है वो यहाँ डिवाइड होगा इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1 7 से कसर काट लेंगे 7 1 7 एक बच गया तो 18 आ गया 7 2 14 4 बच गए 7 7 14 तो 127 जो आ गया हमारे पास 127 और यहाँ एक यहाँ लाएंगे आएगा n हेंस जो हमारे पास n आएगा दैट इज 127 प्लस 1 यानी 128 इस तरीके से हमने मालूम कर लिया कि 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 दे आर 128 इन नंबर यानी 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय 7 होंगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं तो दिस कंप्लीट्स आवर दिस फर्स्ट टॉपिक दैट इज to find the nth term of an AP, to find the number of terms in an AP, sometimes to find the difference and sometimes to find the first term. Thanks for watching this program.